So is Manisha, Kundan Kumar, and Mustafizur Rahman and Paulumi Samanta. These candidates have joined the meeting. Hello, is I am audible to you? I am repeating again the name. Mustafizur Rahman, Paulumi Samanta, and Kundan Kumar. They are all joined. I am here, sir. Okay. Whereas Manisha Kumari has joined. No, sir. Just I am. Okay, let them ping her to join first. Okay, in this meeting we will discuss about the Java also, and after that we will discuss about your project status also. So Java 14 team who are very new, they are most welcome. And today I have the session 3. Already I have took this Spring and other related to JVM, JDK, GRE who are attended, and those are missing. They can get the video. So Kundan. Yes, sir. Please message your rest of the team to join because it is mandatory. After this class, we will discuss about the project. Okay. Yes, sir. You stay here, and this class is going to be within minute we will start their discussion. Okay. There are some team who are not joining, like Puli, Ganesh, and other. Rajat Gupta. Okay. Paulumi Shamanta, Pranesh. Where is Mustafizur not joined? Tell Mustafizur to also. They don't know anything, but when the class will start, they will become upset. And rest of the time they will ask, where is that Java? I don't know Java. How to install it? How to do it? These are real. Kundan. Yes, sir. Just ping one or two twice to your rest of team, to Mustafizur, and after that we can start. Okay. So today team, we are going to start some. Yes, we are very new about Java because it is the first session that I am taking. So I will discuss about a very beginning how Java, how variable declaration, how method, how return type, and these are because many of we are much not aware about these things. So first of all, I am audible and my screen is visible to everyone. Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Thank sir. you very much. Thank you very much. Okay, let's start because I have to finish. I don't want to give more time. Okay, this session is fully dedicated to very new beginners. Okay, who are don't know the variable declaration and all, and also some conceptual things I will tell. So please stay. These things also I was also not rememberable, but after that time I just started. In the interview, mainly things they will ask conceptual question: how much they know, how much you know about variable. So Java variable is a very, you can say, the most and usual concept. Okay, without variable there is nothing. Most important concept. Without variable, there is nothing like in Java. So we need to aware about what is variable. Most important concept today I will going to teach. So let me first. I am going to give definition. Before that, you anyone guys from your team, can you tell what is variable? How you will define variable? In Java? Then I will give my. What is variable? Anyone? Just try now. Very simple. Just unmute and no one. Kundan, you can please say, na, you know na what is variable. Sir, I think variable is a. Yes, hello. Bolo. Bolo. Variable is a One type of container in which I define any value. Something like you are saying like it is in age equal to 10. So here a becomes a variable.
Yes. Or an int becomes a Data type. data type. It's a Data type. So int is not a variable. A is a variable. Int is a data type. So according to the most logical definition, the variable comes as a variable is a name of memory location. Okay. Whenever you are declaring int a and you are not nothing you are defining. So something int a is creating somewhere memory location. Okay, that we can share the data here. Here a is equal to 10, so we are sharing the data. So basic definition a variable. I'm writing the definition. So you please note down. You can use this definition in your interview also. And this is the most recommended definition I can say. So a variable is a name. Is a name of. Okay, here Arkodeep is there, na? Arkodeep. है कि नहीं? Arkodeep. Hello, Arkodeep, are you there? And share it. Okay, anyone has contact of Arkodeep? This call once. Arkodeep को कोई जानता है यहाँ पे? No, sir. नहीं जानता है? अरे यार वो एकदम बंदा एकदम कुछ भी नहीं जानता है. तो होना जरूरी. So here A will be the create the memory location where we are sharing the data state. So this is the simple definition of a variable. So now I am putting value of a variable can be changed or not. My question. Value of a variable can be changed. Yes, sir. Change. Yes, sir. Value of a variable can be changed. It is beauty of Java. So also that something one point I can say here. The value of a variable can be changed, and also very simple example I am. Program I will later come. Okay, suppose I am int age equal to 10, and suppose right now I am putting a right now becomes 2, a is equal to 20. So here the print will be like a become what? Value of a becomes 30. No? 30. Yes, sir. Yes, because this is the left parenthesis and this is the right parenthesis. So always values pass from right parenthesis to left parenthesis. Okay. So generally you see that a becomes equal to what? 10 plus 20 is equal to 30. So this is the general concept. Left parenthesis. Left parenthesis means this one. Left one equal to left. So becomes equal to 30. So this is the value of a variable can be changed. Okay. My next question related to there's something like default value also. So what are the default value we can say? Oh, what are the default value? Anyone know? What are the default value of a variable? 1, 2. No, sir. Default value of variable generally 0. It is a default value. Null. It is also default value. If your type is double. Double means okay, null I have put wrong. Okay, what is going on? Putting null, and after that I am putting a double. So double is also 0.0. Is a default value for double. 0 already are defined. So these are the default value of a what I can say that for pure variable. So what are the different types of the primitive data type? I have already defined that used with the variables. So like primitive data types, we have int, that is 4 byte. Now I am coming to one more variable, that is character. This is also 4 byte. No, so it is 2 byte. Sorry. So it is a 2 byte. So these are we can use character. Now have a float. Float, that is a type of 4 byte also. This is also 4 byte. Now I am coming to double and long. So these things we can use with the variable. And also many more things there. So double is also 8 byte and float is long is also 8. So long and double we generally very rarely we used. Also a lot of programmers, you are the very big developers right now in future. So we generally use int, character, float, string and all. So right now I'm putting one program and you guys will tell me the output.
how, let's see how much you know about the create, because you all are already okay. In this session, Devi Prashna is there. Devi Prashna, No, the sir. mechanic. Devi Prashna is not there. Yes, sir. Are you there? Yes, sir. देव प्रश्न तुमको समझ में आया? व्हाट इज वेरिएबल? Yes, sir. Variable very simple. Where int a is equal to 10. So a is a variable, int is a primitive data type, and 10 is whatever the data is sharing with that variable. Okay, suppose I am putting, let me see, the Prashna is very much. I am putting here int is equal to a, and I am putting here Sandeep. Okay, the Prashna. Then tell me, it is the correct way to declare a variable. Int a is equal to Sandeep. I am no. तेरी प्रश्न बोला ना, कोई और नहीं ना बोला? नहीं सर, आमी बोला, मुस्तफिजुर रहमान सर। मुस्तफिजुर रहमान बोला भाई, तेरी प्रश्न बोला। So here is the, see here a is a variable, but your data type is primitive data type is int. But what you are giving him, Sandeep. Sandeep is not integer. Sandeep is a string. You can put in the this, so this is a very wrong. So this is the things we need to must aware. Whatever the primitive data type, the variables will be shared the same data type, not a different data type. So right now I am putting one class name here, class ABC, suppose, and I am making one class as a, I am declaring one primitive data type int, and x is a variable, and sharing the data file. So right now it is correct. Now I'm again putting int y, but here I am not defining any value. I am putting one character, that is one of the most our data type, and I am putting character y also, and I am just nothing I am putting here. Now I am going to use our system.out.println. Programming do practice. So here I am putting all the things like I am printing x. Copy for Control V. I am putting y. Y I can also print, and also printing characters. Character will be not like that. I will put y here. First, tell me that output. So कोई मुझे बोलेगा क्या आउटपुट आएगा इसमें? Can anyone tell what will be the output? Leave it. This is not the statement. Leave it. Error होगा। सर एरर होगा सर। Error होगा। क्यों error होगा? सर वाई का दो वेरिएबल को हम मतलब दो मतलब डाटा डिफाइन नहीं किया हुआ। क्या नहीं डिफाइन है? सर वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इनिशियलाइज नहीं हुआ है सर वाई। सर इनिशियलाइज नहीं भाई। नहीं हुआ। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसे सर वो तो डिफॉल्ट बाद में आएगा। पहला नंबर तो ये इसके अंदर मेन क्लास है ही नहीं, तो ये कंपाइल कहाँ से करेगा? अच्छा हाँ सर मैं तो मेन क्लास डालूंगा तब तो, तब हम्म। कंपाइलेशन करवाता है। सो राइट नाउ आई एम पुटिंग वन मेन क्लास। इसको देखो, ये है कि यही तो मेन है, ये नहीं रहेगा तो फर्स्ट क्लास कुछ भी। इनको फिर ऑब्जेक्ट बना के फिर इसको सर्वलेट में कॉल करना पड़ेगा उसको यार। So right now I'm putting here public static void main. I have done the main class and I have put it something like inside of it. Look method inside.
I can. So अब आउटपुट क्या होगा? टेल मी द आउटपुट. लाइक द इनसाइड मेथड आएगा, इनसाइड विल बी देयर. उसके बाद आउटपुट क्या आएगा? उसके बाद वही x equal to 5 x इक्वल टू 5 नहीं आएगा बिकॉज मैंने x इक्वल टू दिया नहीं, सो 5 प्रिंट. उसके बाद क्या आएगा? 0. गुड. उसके बाद आएगा 0, क्योंकि मैंने y का वैल्यू वहां पे डिफाइन नहीं किया है. y इक्वल टू नथिंग, सो y विल बी टेक 0. ओके, so here the default value for y will be always 0. So remember these things. Will be 0. And here default value for character, can anyone tell? Null. null. Good. Default value for character always is null. So these things we need to take in more mind. So that's why we'll read. So यहाँ तक clear? यहाँ तक clear? So this is all about variable. I have told the variable definition, declaration, variable exact location. We cannot. What is that? After that, we have defined the computer type, and now this is a small example I have put it in front of you about variable declaration and default value for that. So here y will be that int y. Someone says that define नहीं है तो issue आएगा. No, it is always be taking 0, and character यदि define नहीं है value तो उसका भी value default पे null लेगा. So there is something like concept of default. Default is it. So this is the default. So this is all about variable. I don't think much is there. So variable में भी अब उनके position, there is something class I have declared variable. So their position variable is also defined in 3 types due to declaration of their position. हम लोग variable को बहुत जगह define कर रहे हैं, इसलिए मैंने variable को जावा ने उसको 3 different types में उसको divide किया है. So there is the variable according to the position of declaration. You can see. Declaration according to their position. So मुस्तफा जी तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मुस्तफा जी. सर हाँ मेरे सर को समझ में आ रहा है. And what about Paulami Samanta? You are also getting or not? Paulami? Yes sir, yes sir. सर Good. वो मेन मेथड के सर बोल रहा था वो मेन मेथड के पहले प्रिंट फंक्शन हम लोग डाल सकते हैं क्या? Yes, you can put. There's nothing. You can print a function anywhere. सर वो जब कंपाइल टाइम होगा तो पहले x प्रिंट होगा फिर y प्रिंट होगा उसके बाद तो मेन मेथड का प्रिंट होगा या पहले मेन मेथड प्रिंट होगा उसके बाद xy? No, always come to main method. Okay, main is always going to compile first. Then उसके बाद हम लोग ऊपर. उसके बाद पहले main आता है उसके बाद वो ऊपर आता है. Inside आएगा then उसके बाद here के लिए. समझ में? Main पहले आएगा. So variable according to the position of declaration we have 3 types. Something like instance variable is there. Instance variable. कोई और बोलो. Help me. मुझे नहीं पता है भाई बोलो. Instance variable. लोकल वेरिएबल. ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है, इसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं. इसका और भी एक नाम है ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल. यदि इंटरव्यू में पूछते व्हाट इज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, इंटरव्यूअर समझो उसको बोल रहा है इट इज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल. वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोल देते हैं.
कोडिंग में मत जाना भाई। और इसके बाद आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, थैंक यू। लोकल वेरिएबल का नाम स्टैक वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। व्हाट इज स्टैक वेरिएबल? ये अल्टरनेट नाम भी तुम लोग याद रखो, ठीक है, ये बहुत कम है, इसको स्टैक वेरिएबल बोलते हैं। और इंटरव्यूअर कभी कंफ्यूज करना होगा तो वो बोल देगा। और एक आता है तुम्हारा और एक वेरिएबल है, कोई बोल सकता है? ग्लोबल वेरिएबल नॉट सपोर्टेड इन जावा। Static variable. Yeah, it's something like a static variable. किसने बोला? नाम बोलो, नाम बोलो। So Pranesh. प्रणेश को करने को। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल का और एक नाम है क्लास लेवल वेरिएबल भी इसको बोलते हैं। You can say him as a class level variable. Pranesh, you are much active boy. I have seen you. So keep it up. Doing the project also. How much your project progress right now, Pranesh? Sir, we need to start with coding, sir. Coding part. You started with the coding. Yes, sir. Good. तो अच्छा, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ। कोडिंग तो लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, मैं उस पर आऊँगा, पहले मैं क्लास कर लेता। So suppose I am class ABD, I have defining something I want to see. See, whenever I go, I am taking interview also in my something in separate time, you can say. So that time I was usually asked these things. So many of the resources are telling wrong answers. I don't know why. These things I have, or I don't know. Object concept is not clear. Okay. मनीषा ने ज्वाइन किया कि नहीं? मनीषा इज देयर? कुंदन, मनीषा ने ज्वाइन किया है? एक्चुअली स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ सर, सर ज्वाइन किया। ज्वाइन किया तो बोल क्यों नहीं रही भाई? फॉर्मेलिटी पे ज्वाइन मत किया करो, मैं बता रहा हूँ सबको। इट इज नॉट नीड टू रिक्वायर्ड टू डू द फॉर्मेलिटी, जस्ट लर्न आल्सो। ओके, सी हियर आई हैव डन द। हाँ बोलो मत बोलो तुम। सर आई गेस वी का कुछ इंटरव्यू या कुछ साइन करके चाहिए। इंटरव्यू है अभी, पीछे ज्वाइन किया, इंटरव्यू देने में। आई डोंट नो। अच्छा, सी छोड़ो उसको, छोड़ो, पहले हम लोग अपना क्लास को कंसिडर करते हैं। सो ABD A1 इक्वल टू न्यू ABD। सो ABD इज व्हाट? ABD here, anyone say ABD? Object. ABD is class object. name, sir. Class name, sir. ABD is class name. Now A1 Reference variable. Reference and new ABC is making Object. Okay, let me see first. I am taking this thing very note down. इसके बाद और एक चीज पूछूंगा। The reference variable. Reference variable and new ABC is creating the object, or you can say ABC is not is ABD. New ABD is allocating memory at runtime. Please also remember, whenever you are creating allocate memory at runtime, and it is also creating the object. So runtime and compile time. Confusion is there. Runtime means what? Your program is running on the browser. At that time, the allocation of memory is done by new ABD. And new ABD, it is also responsible for object creation. And it was also an object of your that statement, object creation. And here is the one default constructor is also there. Can anyone say who is the default constructor? Sir, ABD with bracket. ABD, this one is a default constructor. तो ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना। बहुत बार इंटरव्यू में मैं देखा हूँ, लोग पूछते हैं इसके बारे में क्या है, क्या न्यू ABD क्या है? ये ऑब्जेक्ट है।
new ABD is totally creating a memory allocation at the object for your own. Okay, and ABD here, the parenthesis one is the default constructor. You can say. So this is a basic terminology I have given. मैं इंटरव्यू में जब भी पूछता हूँ लोगों से वो हमेशा गलत होता है। ये तो सब सर चीजें दिमाग में ये जो पूरा लिखा हुआ है ABD A1 इक्वल टू न्यू ABD, ये जो सारा है इसको मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकता हूँ? सारा को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकते हो, ये तो सारा एक स्टेटमेंट ABD इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। वो तो ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट है ना। A1 इज द रेफरेंस वेरिएबल, ABD इज अ क्लास, न्यू ABD इज रिस्पांसिबल फॉर एलोकेशन ऑफ मेमोरी दैट एट द रन टाइम में इज सेटिंग एंड ABD पैरेंथेसिस इज कंस्ट्रक्टर। तो ये छोटा सा एक नमूना था, मैंने थोड़ा दिखाया तो ये भी बहुत जरूरी है। नाउ आई एम कमिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल, कम टू बैक वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में मैं 5 पॉइंट दूंगा, दैट इज इनफ टू आइडेंटिफाई इंस्टेंस वेरिएबल, नथिंग मोर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टेंस वेरिएबल। The 5 points basically I am giving one by one, you can write down, also it is recording। ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना भाई? रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं? देखो तो। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओ भाई मैं डर ही गया। Okay, for instance variable we have the 5 points that I want to give, and exactly that you can identify simply it is instance variable or it is a local variable and it is static variable. Fine. So instance variable is generally okay, let's first you guys start, then I will come to my points. Okay, कोई बोलो instance variable के बारे में कुछ। इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में दो शब्द। पौलमी तुम बोलो, दो शब्द बोलो इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। पौलमी सर वो ABD A1 में वो A1 है इंस्टेंस वेरिएबल। ABD A1 इंस्टेंस नहीं बॉस, ABD A1 कहाँ है? पौलमी आप हो? The variable which is declared within the class is called instance variable. दैट इज ओके, गुड। पौलमी है कि नहीं क्लास में? तो अच्छा है, कोई कुंदन बोलो ना, है कि नहीं? चलिए छोड़ो। हाँ सर है सर। बोलते हैं। अच्छा चलो मैं कम टू पॉइंट। ए वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास, इट इज इनफ, बट आउटसाइड फ्रॉम द मेथड दिस इज आल्सो कंपल्सरी, or at the comma the constructor or any block call the instance variable. So I am also writing so that you can, a variable such is declared, जिसने बोला था बहुत ही अच्छा बोला, सुंदर बना बोलो। सर वो int a और int b जहाँ आपने लिखा है वही हो गया ना इंस्टेंस वेरिएबल। जो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया क्योंकि वो आउटसाइड मेथड है, कोई भी ब्लॉक है। सो डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास, इनसाइड ए क्लास दैट इज इनफ। इसके साथ साथ आउटसाइड फ्रॉम मेथड, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी नहीं होना चाहिए वेरिएबल, इट इज नॉट इनसाइड, एंड आल्सो एनी ब्लॉक ऑफ कोड, block of code के अंदर भी block of code that is called instance variable, and that is called instance variable, that is also okay. One more point about instance variable is that instance variable के बारे में ये बोला जाता है कि how many of your objects, that many types of your instance variable, कितने बार तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उतना बार इंस्टेंस वेरिएबल भी क्रिएट होता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत सूटेबल हो रहा है बोलने हिंदी। नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग इन द इंग्लिश आल्सो। इफ यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन लॉट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल विल आल्सो क्रिएटेड, यू कैन से। सो इन दिस एग्जांपल आई विल कम टू पिक्चर आल्सो। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग now second point is most important, how many of your objects those many number of instance variables।
many number नहीं चाहिए, many number ही लिखो, those many number तो भाई सिक्स के पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, मतलब सीखा मतलब पहले से instance variable concept wise, nothing here right now. So I am putting one program in front of you so that you can identify the block of code that I have given now how many number of objects, those many number of instance variable that all. So in favor of that I am putting one program so that you can identify. Suppose I am putting class Sandeep here. संदीप का क्लास मैंने यहाँ पे इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, तो मुझको इसको क्लास के मेथड के अंदर रखूंगा ना इंस्टेंस वेरिएबल। क्या कुंदन इंस्टेंस वेरिएबल को मेथड के अंदर रखूंगा? नहीं सर, आउटसाइड। चलो बढ़िया है, चलो मेथड के बाहर रखता हूँ मेथड कंस्ट्रक्टर। सपोज दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल इंट एक्स वाई, सपोज इतना ही लेता हूँ और एक चलो एक कॉल, तो मैं इसको इंस्टेंस वेरिएबल के मेथड के बाहर, अब मैंने मेथड के बाद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो इसको मैंने लिख दिया सपोज स्ट्रिंग args, मैंने पास कर दिया नाउ मैंने संदीप को, अच्छा एक क्लास का मिनी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं? कैन आई क्रिएट मिनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास? यस सर। तो मैंने यहाँ पे फिर एक संदीप का ऑब्जेक्ट बनाया। So here A1 for here for B1 reference the instance variable will be, अच्छा एक चीज और मैं प्रिंट करना चाहूँ, लेट मी चेक। मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया B1, सपोज मैंने कॉल किया, सपोज I call B1 reference variable. B1 is not an object, I already told. B1 reference variable I call. So for that output will be, anyone say output will be for x, y, z, x is equal to y is equal to z equal to, for B1 reference variable. Tell me क्या होगा, x, y, z का वैल्यू क्या होगा for B1 reference variable? For reference variable of that object I have created according to Sandeep class. So what will be the object output of x, y, z? बोलो मैं अभी पढ़ाया हूँ कुंदन। x y r होगा सर। x y सॉरी x y z कॉम्बिनेशन। सर उस x y z में तो कुछ इनिशियलाइज है ही नहीं, तो जीरो होना चाहिए। हाँ तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा ना, डिफॉल्ट वैल्यू तो लेगा एटलीस्ट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z r इक्वल टू। Now I call B1 B2 reference variable, इसके लिए वो फिर से ले लेगा सेम x इक्वल टू y। So that is the statement of mine, कि how many objects, those many number of instance variables. That is the call. Again x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 and z इक्वल टू 0. For your, again I call, if I call B3, so for that also again x is equal to 0, y is equal to 0 and 1. Okay, same output will be there. So these things you put in your mind में put करो या फिर लिख लो, ये recorded भी है. So this is our my second point that I explained. What is the how many types of object, those many number of instance variable. Now my third point, instance variable
जनरली स्टोर इन द हीप लोकेशन ऑफ मेमोरी एरिया। तो हीप एरिया में स्टोर होता है। तो हीप एरिया के बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और मेरा एक और क्लास होगा जिसमें स्ट्रिंग पूलिंग में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा हीप क्या होता है। तो व्हाट इज दैट? इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर इन हीप एरिया। और नेक्स्ट माय पॉइंट, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5 पॉइंट बोला हूँ, 5 पॉइंट और एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। Something like instance variable is something like you can say independent. If you do any modification in any object that it does not affect on another object, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये भी instance variable is independent। तो इस सेंटेंस का मतलब कोई बता सकता है मुझको? इंस्टेंस वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। इट मींस सर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे संदीप B1 B2 B3 सबके लिए इनिशियलाइज होगा। if you do use any modification in any object, it does not going to effect on the another object. In any object, it does not affect on। सर इसमें इंस्टेंस वेरिएबल में, हेलो, हाँ बोलो, आप बोलो ना। हाँ सर बोल रहे थे कि यही इंस्टेंस वेरिएबल में जैसे इसका डिफिनीशन है कि इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड अ क्लास और आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में डिफाइन किया जाता है। तो ये एग्जांपल में कैसे हम समझेंगे? मतलब इसको किसी मेथड के अंदर नहीं डिफाइन कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्टर भी लिखेंगे तो उसके अंदर भी हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहाँ समझ में आ रहा पे है? यदि मैं सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास संदीप ले लिया, संदीप छोड़वा ABC ले लिया, और मैंने यहाँ पे इसको एक मेथड ले लिया। सपोज मैंने एक मेथड ले लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ओके, और मैंने इसको सपोज, अरे यार, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ int x y, नो इट इज नॉट इंस्टेंस वेरिएबल। समझ में आ रहा है? Yes, ये sir. अब लोकल हो चुका है। राइट नाउ इट इज अ लोकल वेरिएबल, इट इज नॉट इंस्टेंस। इंस्टेंस विद व्हाट? हियर बोलो क्योंकि सर ये अब इनसाइड यहाँ द पे ये, मेथड हो गया। यस यस, हाँ, ये मेथड के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया। नाउ इट इज बिकम लोकल, इट इज नॉट बिकम इंस्टेंस, बट int p is right now इंस्टेंस। समझ में आया? यस यस। और थैंक यू। ये ऊपर में जो लिखा हुआ है उसमें आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर और इनसाइड मतलब क्लास। आउटसाइड कंस्ट्रक्टर के आउटसाइड, कंस्ट्रक्टर के इनसाइड भी रहेगा तो इंस्टेंस बनेगा। ABC मान लो एक कंस्ट्रक्टर मैंने यहीं पे डाल दिया, कुछ कंस्ट्रक्टर मींस व्हाट? सेव void ABC मैंने डाल दिया, ओके। राइट नाउ मैंने इसके यहाँ पे कुछ इसके अंदर भी कुछ लिख दिया, int y z ऑफ, so it is not a, you can say, instance variable, it is also a local variable। कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन पता है ना? क्लास नेम, मेथड, दैट मेथड नेम यू कैन स्टोर डिफॉल्ट मेथड, दैट इज आल्सो सेम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वो मैं बाद में आऊंगा। सर ब्लॉक So, का right. मतलब क्या हुआ? हाँ, क्या बोले? सर ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ब्लॉक मतलब समथिंग लाइक दैट, class ABC if I put it and you have put it any block, something like code. If I say something here, I'll say this is a block. What you can say here, if I put it any, it's not inside that. If I put it here also, so it's block of code. Block of code, this is also, and also if you are defining any method there, and inside that block you are defining, this is also not a block of code, that is. It is not inside that main. सर इसको वो
स्क्वायर ब्लॉक के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? स्क्वायर ब्लॉक क्या होता है मुझे फर्स्ट स्क्वायर ब्लॉक नहीं है। अच्छा, ये वाला एक था तुम्हारा क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दोज मीन नंबर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ मैंने ये वाला जो एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल में यहाँ बताया संदीप P1 P2 P3, और यहाँ पे मैंने बहुत सारा रेफरेंस वेरिएबल के अकॉर्डिंग मैं एक्स वाई जेड को डिफाइन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे दिया। तो मैं उसका एक एग्जांपल तुम लोगों को दूं, तुम लोग बता पाओगे में? सर क्लियर करना जरूरी सर क्लियर। हाँ बोलो। सर वो 4 नंबर वाला थोड़ा मतलब ये कंफ्यूज है, हाँ हाँ मैं वो देखा, मॉडिफिकेशन जो हो रहा है। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसी में। मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू, और मैंने जेड में कुछ दिया। मैं एक मेथड बना देता हूँ, now inside that मैं कुछ लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेड को सपोज में एक और So I have created one main class. Inside that main class, I am making the object of ABC A1. पर लिखने में तो हाँ, again one creating one more object ABC A1 A2 ABC. I'm putting again ABC P3. P3 बहुत ज़्यादा हो गया। See, suppose I have created that all. Now I am putting a1 dot x. देखो इस एग्जांपल में जिसने अभी कोई क्वेश्चन पूछा था ना, वो मॉडिफिकेशन और वो क्लियर हो जाएगा। a1 dot x, suppose I have put 10. Now I am again putting one more. Now in this case I am putting. So here I am putting. Suppose I am printing a1 dot x. अच्छा, राउट में a2 डॉट एक्स मैंने यहाँ पे दिया। सपोज मैंने a2 डॉट एक्स दे दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो चलो आउटपुट क्या क्या होगा थोड़ा बताओ। प्रोग्राम सामने है, मैंने एक क्लास लिया ABC, उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर लिया है, x y z। x का वैल्यू 7 8 और 7 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा।
7 कर देता हूँ। ओके 7 8 9 9 नहीं है, एक वाई जेड का वैल्यू मैंने कुछ भी डिफाइन किया, सिस्टम में मैंने जेड को प्रिंट किया है। मैंने एबीसी ऑब्जेक्ट का 3 रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना दिया है। मैंने a1.x6 को फिर मैंने चेंज कर दिया है वाया मेकिंग a1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। नाउ a2 को मैंने फिर चेंज किया है x को। सो आप बोलो मेरे को फिर मैंने x छोड़। सो आउटपुट बोलो, टेल मी द 10 and 9. सर 10 9 0 10 9 0। तो 10 तुमने किसका बोला, मैं देखूं। सर पहले तो पहले मेन एग्जीक्यूट होगा तो a1.x आएगा 10 आएगा पहले, उसके बाद a2.x आएगा 9, उसके बाद वो void show वाला प्रिंट होगा 0। 10 आएगा, फिर तुमने 8 आएगा, 10 के बाद तुमने बोला 9 आएगा। सर यहाँ तो 9 अपने इनिशियलाइज किया है, a2.x इक्वल टू 9 किया है, तो 9 शायद आएगा। नहीं 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 नहीं, तो सर आउटसाइड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के 9 है। देखो 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 मैं तुम लोग को बताता हूँ। 10 के बाद 9 नहीं आएगा बॉस, 10 के बाद तुम्हारा 8 आएगा, 3 आएगा तुम्हारा 0, क्योंकि मैंने a2 को दिया है ना। मैं बोला क्या, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई मतलब मॉडिफिकेशन करूंगा तो उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने a2 को किया है मॉडिफिकेशन, मैंने a1 को मॉडिफिकेशन नहीं किया है। तो सर ये आपका a2 होगा, a2.x होगा 7। पहले x का पूरा प्रिंट करेगा ना, क्योंकि मैं a1 को कॉल कर रहा हूँ। a1 से पूरा जो रिलेटेड है वो सारा प्रिंट कर देगा। तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, 8 आएगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, मैंने y को प्रिंट नहीं किया है तो इसका मतलब y को भी मैं काउंट कर लूंगा। 10 8 0। a2 के लिए फिर क्या आएगा, 9 8 0। a3 के लिए क्या आएगा, a3 के लिए क्या आएगा, कुछ बोलो। a3 के कुछ नहीं है। a3 के लिए मान लो कुछ भी मैंने डिफाइन नहीं किया है। a3 के लिए नॉर्मल आ जाएगा 7, क्योंकि मैंने वहाँ कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो सिंपल है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट का मॉडिफिकेशन दूसरे ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू इनिशियलाइज है 7 है, उसका क्या रोल है यहाँ पे? मैं वहाँ पे उसका रोल देखो, a3 में मैंने उसका रोल लिया 780, a3 को लिए, a3 के लिए 780, a1 के लिए देखो वो x जो है वहाँ पे मैं उसको चेंज कर दे रहा हूँ, इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, 10 कर दे रहा हूँ। तो x जो है 7 से वो 10 हो जा रहा है। लेकिन वही a2 जब x में डिफाइन हो रहा है तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 8 को 10 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो 9 हो जा रहा है, क्योंकि वो 10 लेगा नहीं, वो 8 ही है। तो फिर समझ में आ रहा है? हाँ। 7 को 8 कर दे रहा है, 7 को 9 कर दे रहा है, तो 9 आ जा रहा है। तो इस तरह करके ये ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, सबका अपना अपना रेफरेंस वेरिएबल है, सब अपने हिसाब से उसको चेंज करके आउटपुट। और a2x में क्या होगा सर, यहाँ पे जब 9 आ गया, a2x में मैंने जब 9 डिफाइन किया है तो देखो a2 का जब ऑब्जेक्ट मैंने बनाया abc a2 इक्वल टू न्यू abc, तो a2x में क्या है, अब a2 में जब वो ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो डिफाइन करेगा abc का a2 वेरिएबल। अच्छा, x का वैल्यू वहाँ 7 है, बट यहाँ पे तुमने इनिशियलाइज क्या कर दिया 9, तो 7 को हटा देगा 9 आएगा, तो 980। समझा? ये सर क्लियर है? क्लियर? यस। तो A1 A2 A3 है, उसमें पूरा XYZ पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा ना, तीनों का ही। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू आएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करने का तरीका अलग है, जब मैं कॉल करूंगा तो सभी आएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट समझो, प्रिंट तो तुम अपने से भी कर सकते हो, क्या प्रिंट करना। ये जो चेंजिंग हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया a1.x इक्वल टू 10, नेक्स्ट टाइम में जब a2 वेरिएबल को ले रहा हूँ तो x का वैल्यू 7 ही लेगा, 10 नहीं लेगा। 7 को 9 में कन्वर्ट करेगा, 10 को 9 में। समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, सबका अपना अपना होगा, इतना समझ। हाँ बोलो सर, ये फाइनली क्या प्रिंट करेगा? दो ही सिस्टम के थ्रू प्रिंट करेगा ना, जो कि हाँ, मैंने x को प्रिंट किया तो x आएगा, मैं और प्रिंट करूंगा y प्रिंट करूंगा z तो आएगा। मैं प्रिंटिंग पे मत जाओ, कंसेप्ट समझो, प्रिंटिंग कर लेना, a1.x a1.y y z ये सब प्रिंट करना।
a1 डॉट वाई प्रिंट करूंगा तो 8 आ जाएगा। वाई को जनरली मैं चेंज नहीं किया हूँ क्योंकि मैं एक ही प्रिमिटिव डेटा टाइप को लेकर उसको जस्ट मैं ऑल्टर करके दिखा रहा हूँ कि कैसे मॉडिफिकेशन हुआ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए इंस्टेंस वेरिएबल था। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में इतना ही बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन चेंजिंग इन ऑल। लोकल वेरिएबल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। लोकल वेरिएबल के बारे में सभी कुछ जानते हैं, मेथड के अंदर रहेगा और जो भी तुम लोग डिफाइन करते हो सब। लोकल वेरिएबल के बारे में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ ज़्यादा। इंस्टेंस वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क। इसके बाद मैं कुछ स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ। लोकल के जगह मैं स्टैटिक वेरिएबल को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा रिटर्न। सो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में कोई कुछ बताओ। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सर हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। इसमें वैल्यू चेंजेस नहीं होगा। वैल्यू चेंजेस नहीं होता है। और भी क्या होता है, कॉमन होता है टू ऑल ऑब्जेक्ट। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से डिनोट करते हैं। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टोर इन मेथड एरिया, इनिशियलाइज द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, कंपाइल टाइम। कंपाइल जब भी जेवीएम स्टैटिक वेरिएबल, जब भी जेवीएम स्टार्ट होता है रनिंग, पहले वो स्टैटिक को फेच करता है। So using the static variable, you can say using class name, object, or directly that variable directly within the same class. So मैं कुछ 4-5 पॉइंट दूंगा पहले, उसके बाद मैं एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल देके उसको खत्म करूंगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद मैं स्टैटिक ब्लॉक पे आऊँगा। स्टैटिक ब्लॉक होते हैं क्योंकि स्टैटिक को लेकर बहुत कंफ्यूजन। मुझे भी वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल का फर्स्ट पॉइंट होगा तुम लोगों का स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड इट इज मस्ट। परेश कुलकर्णी, परेश कुलकर्णी, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, गेटिंग सर, इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आया? यस सर, यस सर, या ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जेवीएम create as JVM does not create a copy of static variable with the object. ये वाला पॉइंट इंस्टेंस वेरिएबल से रिलेटेड है। Create a copy of static variable. सही है, सही है। मैं भी ये सोच के पढ़ा कॉपी ऑफ स्टैटिक does not create copy of static variable
हेलो, सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, मेरा कॉल आया, मैं निकल गया। तो माय गॉड, मुझे भी पता चल, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, अभी कॉल नहीं आया। सॉरी सॉरी, कॉल आया था तो मैं निकल गया मीटिंग से। नेट ऑफ हो जाता है चलो। ओके सर। तो ये स्टैटिक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, एक्स को 9 लिया है, एक्स को फिर मैंने एक्स लिया है, फिर मतलब क्योंकि यहाँ पे मैंने वाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वाई ले लेता हूँ, वाई 8 कर दिया है, और राइट नाउ 9 8। फिर मैंने एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के साथ फिर मैंने चेंज किया है इसको, और वाई को भी चेंज किया है। तो मुझे कोई बोलो कि a1 डॉट वाई वाला नंबर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ a1 जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में वाई का वैल्यू क्या है, और a2 डॉट वाई क्या होगा, a2 डॉट वाई, तो वाई का वैल्यू कोई मुझे बोलो। दोनों केस में 9 ही आएगा। दोनों केस में 9 है। अच्छा, वाई का वैल्यू 9 आएगा, A2 में वाई का वैल्यू 8 आएगा। अच्छा, कोई बोला 8 है, मुझे भी देखने को क्या आएगा। a1 डॉट एक्स होगा, पहले a1 का वेरिएबल मैंने बनाया है a1 एक्स, एक्स में जब जाऊंगा तो वहाँ पे देखो एक्स में मैंने लिखा है x इक्वल टू 5। अब मैं जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं स्टैटिक में क्या कर रहा हूँ, उसके ऑब्जेक्ट के वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। सर यहाँ पे 5 कहाँ लिखा हुआ है, 9 और 7 इसमें। अच्छा सॉरी, 9 और 7, मैंने 9 को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो 9 को मैं चेंज करके वहाँ 7 कर दे रहा हूँ स्टैटिक में। नहीं सर, नहीं होगा, तो स्टैटिक में तो चेंजेस नहीं होता है। गुड गुड, यही तो मैं चाह रहा था, कौन पकड़ पा रहा है। अब फिर मैंने एक काम किया है, फिर मैंने एक और देखो काम किया है कि a1 डॉट वाई का वैल्यू 9 कर दिया, तो y का वैल्यू मैं वहाँ पे 8 था, और फिर मैंने क्या किया, वो स्टैटिक नहीं है, वो नॉर्मल इंटीजर है, ठीक है, वो चेंजेस होगा, वो चेंजेस। समझ में आया? यस सर। तो फर्स्ट वाला वैल्यू क्या आएगा तुम लोगों का, 7, 9 आएगा, 9 और आएगा। 7 and 9, 7 and 9, 9 आएगा, क्योंकि सॉरी 9 आएगा, क्योंकि स्टैटिक चेंज नहीं होगा। 9 और तुम्हारा आएगा 9, 9 और 9, 9 और 9 किसने बोला था?
मैं सर नहीं बट जिसने बोला था सही बोला था, 9 एंड 9। सर दोनों में 9 ही आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि हाँ, सर कौन तो आएगा? सर वो 8 आना चाहिए ना किसमें 8 आना चाहिए? दोनों में, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल चेंज नहीं होगा। तो शुरू में मेरा y इक्वल टू 8 डिफाइन किया गया, फिर लास्ट में a1 डॉट y इक्वल टू 9 है। वाई स्टैटिक नहीं है, y एक्स स्टैटिक स्टैटिक है। नहीं है। वाई स्टैटिक एक कहाँ पे है static है। भाई? वाई स्टैटिक नहीं है, वाई तो मैं हाँ, चेंज कर रहा हूँ वहाँ, इसलिए तो मैं दिया हूँ भाई कि कौन चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है। स्टैटिक चेंज नहीं हो रहा है, उसका मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम में, तो वो चेंज नहीं होगा। बट वो जो इंट है नॉर्मल, वो उसका मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम। समझ में आ रहा है? जब मैं a2 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, a2 डॉट वाई मतलब क्या, a1 मैं स्टैटिक के लिए केवल लिया हूँ, और a2 को मैं क्या किया हूँ तुम्हारा, अच्छा मैंने वहाँ पे y दे दिया ना, इसलिए तुम लोगों का x को भी प्रिंट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, x ही समझ लो फर्स्ट वाले को। तो x का वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो उस समय वो स्टैटिक जो है चेंज नहीं होगा। या x ले, ये दोनों y कर स्टैटिक में ऑब्जेक्ट बनाया तो वो चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट वाला तुम्हारा 9 ही रह गया, सेकंड वाला तुम्हारा चेंज होकर 9, तो मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट में किया 9। ओके, हम डिस्ट्रैक्ट हो सब भाई, कोई नहीं। तो ये था तुम्हारा स्टैटिक का, और ये तुम्हारा एक नॉर्मल जो था इंटीजर, जो मैंने वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल कर लो, क्योंकि 8 जो है वो तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल का काम कर रहा है, और इंस्टेंस वेरिएबल का काम कर रहा है तो जब उसमें ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो किसी मेथड के अंदर नहीं है और किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, ना ही किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई स्टैटिक एंड ऑल। एंड ऑल्सो अच्छा, रिटर्न टाइप तुम लोगों को पता है ना? रिटर्न टाइप के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं? है थोड़ा सा। रिटर्न के बारे में तुम लोगों का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा देखो। कितना बज रहा है भाई? 12:30 हो गए, 12:37 हो चुका है। नहीं अब नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट मीटिंग भी करना है अभी। सो यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद और स्टैटिक में 2-3 एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जल्दी लूंगा। और इसके बाद मैं रिटर्न टाइप के बारे में कुछ सर वो रिटर्न अच्छा टाइप क्लिक कर दीजिए। कंप्लीट कर दें? हाँ सर, अरे नहीं, ठीक अच्छा है। तुम बोल रहा है तो एक 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 हो जाए, एक ही हो जाए, ज़्यादा नहीं उसके बाद, हम्म, एक एग्जाम्पल, ठीक है? चलो रिटर्न टाइप के बारे में एक प्रोग्राम दिखाऊंगा अगले क्लास में, क्योंकि मुझे भी अभी तुम लोगों का ही प्रोजेक्ट मीटिंग है, वो आएगा, पिंग कर रहा है तब से मुझको, क्या नाम तुम लोगों का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पिंग कर रहा है मीटिंग के। तो एक एग्जांपल मैं दिखा के फिर मैं मीटिंग करूँगा। तो मैंने एक यहाँ पे मेथड लिया है, मेथड को मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया है क्लास के अंदर। जनरली मैंने एक मेथड लिया है, अब मेथड को मैंने स्ट्रिंग डिफाइन करके इंट डिफाइन किया। लेट मी तुम लोग कंसेप्ट चेक करो। इंट ए B20 तो फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने C30 नहीं करके काम करते हैं, A और B को जोड़ के C को, तो मुझको रिटर्न मैं रिटर्न C करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बंद करने से पहले इसी के मेन क्लास में
हमें बी डॉट ऐड को कॉल करना है। सपोज मैंने ऐसा कुछ बना दिया है, तो कोई मुझे बोलेगा क्या आउटपुट आएगा? सर यहाँ पे मुझे शीर्ष बोले एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हाँ आप बोलो तो क्या होगा इस क्लास में आएगा? इसमें शीर्ष हाँ क्या होगा? अच्छा सी आउट नहीं किया, अरे ये भी मैं ही करूँगा, तुम लोग कर लो यार, तुम नहीं कर लो। जैसे एस लिख दीजिए ना, एस तो ठीक है। हाँ लिख देता हूँ। छोटा सा एक प्रोग्राम मैं अपनी तरफ से कुछ किया करना होता है। बोलो क्या आउटपुट आएगा? 30 और कोई बोलो आउटपुट क्या आएगा? 6 कब आएगा भाई? अच्छा इसमें यहाँ पे मेन क्लास जल्दी 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 मीटिंग करना है भाई, जल्दी बोलो आउटपुट 30 आएगा क्या? क्या आएगा? और बोलो 30 बोला सर, 30। 30 आएगा। अरे भाई 30 नहीं आएगा, वो बताएगा ऐड मेथड कुछ भी नहीं है, ये बोलेगा नथिंग लाइक ऐड, क्योंकि तुम रिटर्न क्या कर रहे हो? सी, तो सी ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना तो यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता है, तो इससे लिखना पड़ेगा int add इक्वल टू 30, ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है 30 डॉट। समझ आ रहा है? अब इसका वैल्यू आएगा 30। रिटर्न टाइप में ऑब्जेक्ट बनाने का भी रूल होता है, यदि तुम b डॉट ऐड कर दिए डायरेक्टली तो बोलेगा नथिंग लाइक ऐड, बिकॉज यू आर रिटर्निंग ऐड and add is nothing here, so you have to define add int। कभी ये ट्राई करो, ये सब तुम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ जो int add है, तो ये add वाला क्या है? यही ऐड है तुम जो रिटर्न कर रहे हो, मतलब ये वर्ड वो फंक्शन को रिटर्न करता है ना, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो इंट ऐड को डिफाइन करता है। समझ में आ रहा है? अब वो जब अंदर जाएगा तो वो फिर वो सी को वहाँ प्रिंट करता है। तो ये हमेशा फंक्शनल रिटर्न होता है, और फंक्शन रिटर्न होता है समथिंग, और एक चीज बता रहा हूँ, और एक चीज यहाँ पे सपोज तुमने स्ट्रिंग लिख दिया, अब बताओ एरर आया कि नहीं? तो यहाँ पे ऐड का क्या काम है? ऐड वो तुम्हारा फंक्शन को दिखाना पड़ेगा, किस फंक्शन को तुम ऑब्जेक्ट से जो तुम कॉल कर रहे हो ऐड को, वो फंक्शन जो रिटर्न कर रहे हो ऐड को रिटर्न कर, फंक्शन रिटर्न करता है। समझ में आ रहा है? तो जब तुम वहाँ स्ट्रिंग किए तो फिर तुमको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, फिर भी एरर आएगा, क्योंकि तुमने स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर पास कर रहे हो, इंटीजर यहाँ होगा नहीं, तो इसको भी तुमको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ कैरेक्टर को आउटपुट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ रिटर्न कर रहे हो इंटीजर, तो इंटीजर होगा नहीं, तो फिर तुम स्ट्रिंग पास करो भैया। इंटीजर के केस में जब यहाँ पे ऐड तो b डॉट ऐड का मतलब कि उसमें इंटीजर डॉट ऐड में क्या बोले समझ? तो तुम क्या बोले, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैं यहाँ पे संदीप करना पड़ेगा, यहाँ पास करना पड़ेगा। तुम्हारा वॉइस कट रहा है भाई, नहीं पता, तुम्हारा वॉइस कट रहा है, नहीं समझ। अब यहाँ पे आउटपुट है, क्योंकि अब तुमने यहाँ स्ट्रिंग को इंटीग्रेटेड है, स्ट्रिंग आउटपुट आ जाएगा संदीप। देखो इसमें जनरली कंसेप्ट क्या है कि तुमको ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो तुमने यहाँ ऑब्जेक्ट बी ओबीजे बनाया, ओबी इक्वल टू न्यू बी, ओके सॉरी यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया है, ओबी होगा बी नहीं, ये ऑब्जेक्ट डॉट ऐड होगा, ऑब्जेक्ट सब सही होगा। हाँ यहाँ मैं गड़बड़ कर दिया, ओबी होगा, मैं तुझे वो कर, तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, तुमने ऑब्जेक्ट से उसको कॉल किया ऐड फंक्शन को, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तुमने उसका फंक्शन ऐड को कॉल किया,
लेकिन तुमने वहां पे पहले तुमने क्या किया, इस रिटर्न टाइप पे क्या होता है, तुमने रिटर्न ऐड को कर रहे हो, तो जब रिटर्न ऐड कर रहे हो तो वहां पे तुम्हारा स्ट्रिंग ऐड ऐसे करके लिखना पड़ता है। तुम लोग ये सब ट्राई करो, यदि तुम उसे नहीं लिखो। कहाँ रिटर्न टाइप नहीं है? वही कि सर यहाँ पे रिटर्न ऐड कहाँ पे है, नहीं है ना सर, यहाँ पे तो रिटर्न। अरे यही तो ऐड फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो ना, ये फंक्शन पूरा ऐड है ना, इसी को रिटर्न कर, इसको पूरा रिटर्न करेगा तब ये यहाँ पे, वहाँ पहले इन था, मैंने स्ट्रिंग कर दिया, अब ये संदीप जो है, संदीप ए में गया, अब ये इसको स्ट्रिंग सी हो गया, तो ये संदीप, सिंपल। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा कि क्या क्या है इसका, बहुत सारा चीजें रिटर्न टाइप में कैसे चेंज, पैरामीटर वाइज। हाँ संदीप होगा, क्योंकि मैंने हाँ ए को संदीप प्रिंट कर दिया। केवल इस लाइन को बहुत पर्टिकुलर रूप से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत कोई तो नहीं पता, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग पढ़ के भैया। और भी ऐसा सब बहुत अच्छा चीज़ है, मैं सिखाते रहूँगा। ये सब जनरली किसी को पता होता नहीं है, पूछोगे तो भाग जाएगा। रिटर्न टाइप में ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है। सो आज के लिए यहाँ तक भैया, क्योंकि मुझे अब प्रोजेक्ट मीटिंग करना है, 12:50 हो चुका है। दिस क्लास इज गोइंग टू वेरी हाई। नेक्स्ट डे मैं पढ़ाऊंगा रिटर्न टाइप, ये कंटिन्यू होगा। इसके साथ साथ जो तुम्हारा इफ एल्स आएगा, लूप आएगा, स्विच आएगा, धीरे धीरे इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। बोलो 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 बोलो। ठीक है सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं अभी शेयर मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल फॉर माय क्लासेस, फॉर माय क्लास। नेक्स्ट Anis, are you there? Anis, are you there? Yes, Anis, please stop the